India captain will take 3 questions in English. We'll move to Hindi. After 5 questions, he'll take questions on India's next match against South Africa. So total 8 questions post-match and 5 questions pre-match. Thank you. Questions in English, please. For the mic. After 4 games in the tournament, do you think you have finally found the right combination as far as the 11 goes? Well, I think it's horses for courses, as I said. Whatever suits the condition the best, we'll look to play that. So it depends on what kind of a wicket we are playing on when we play our next game. So we're not decided on the playing 11 for the next game. We'll wait and watch. MS, with the bowlers, obviously there seems to be some kind of inconsistency going on. In one match they do well, in one match they don't. Today's performance, how do you see it from behind the stumps and as captain? Well, I think assessing the performance of the bowlers, particularly keeping the last game in mind, it won't be really right. The reason being, I told you the ball got wet and it was really difficult for them to bowl their variation. We have not got bowlers who bowl 145. We have got bowlers who bowls were slightly slower, but at the same time they've got the skill to get the batsman out. But our problem starts if there's nothing from the wicket, which means if it's not on the slightly slower side, or if there's no reverse swing, or if there's no spin, then it becomes a bit of a concern. If you see this performance, I think today's performance was a real good one, because the part-timers contributed, the spinners bowled well, and also the fast bowlers. The first 2 overs we gave away a bit of run, but after that I felt we were quite consistent. Questions in Hindi, Urdu only. बस कुछ पिछली हार के बाद कुछ तनकीद भी आई युवराज को लेकर, लेकिन आज उनका दिन था. फील्डिंग में भी वो एक्स्ट्रा रहे, बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है. किस तरह कहेंगे कि आपका ये डिसीजन इतना ठीक साबित हुआ है? डिसीजन तो अच्छा लग रहा है, बट आप कौन सा डिसीजन की बात कर रहे हो? यूवी तो टीम में था ही, तो इस बात पे कंसिडरेशन भी नहीं हुआ कि यूवी खेलेगा कि नहीं खेलेगा. सो स्पेशली व्हेन वी प्ले विद सात बैट्समैन के साथ जब खेलते हैं, तो जो पार्ट टाइमर्स का रोल है वो इम्पोर्टेंट होता है. विराट एक ऑप्शन है, बट एक लेफ्ट आर्म अवे गोइंग ऑप्शन होना बहुत ही अच्छा होता है. तो वहाँ पे यूवी का परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है. हम सबको पता है कि वो एक अच्छे फील्डर हैं. आज एक अच्छा रनआउट भी किया उन्होंने. सो अगर हम 4 बॉलर से खेल रहे हैं तो मुश्किल होगा युवराज सिंह को टीम से बाहर रखना. एंड आई थिंक जो उन्होंने बैटिंग भी आज की है, दैट विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. लॉस्ट ग्रेट. मतलब हिंदी को तो हिंदी था. Miss, whether, despite what you're saying, there were discussions on Yuvraj. Any stage during the tournament, were you 100% convinced that he's fully fit and fit enough to take the challenge of the Indo-Pak match? Well, when it comes to the fitness, as far as this format is if we are concerned about this format, it looks very fit for this format. And I think he has done a lot in the last few months. It's not like he's playing cricket straight away in the T20 World Cup. Before this he has spent a lot of time in NCA, and after that he played a bit of active domestic cricket, a few T20 games and everything. So, he looks good. I'm not really concerned about his fitness. And as I said, this batting will give him a lot of confidence. Because, if you play in the domestic circuit, still you don't get bowlers who bowl at the international level. So, I think all these matches, he will take a lot of positives out of it. And we all know once he gets going, he's a terrific batsman to have in the side. Last break. इस विकेट को देखते हुए जो पाकिस्तान की टीम इतने कम स्कोर पर आउट, तो कुछ हैरान वाली बात थी विकेट जिस तरह विकेट थोड़ा स्लो था. इनिशियली हमने देखा कि नया बॉल बैट पे आ रहा था, बट थोड़ा टू पेस था. कुछ बॉलें थी जो ज़्यादा बाउंस नहीं हुई और कुछ बॉलें काफ़ी तेज़ी से निकल गई. तो आई थिंक उनका प्लान होगा कि नए बॉल को कैश इन करने, तभी शाहिद भाई को ऊपर उन्होंने भेजा. हमारे लिए जो अच्छी बात ये रही कि हमें रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट मिलते रहे. और हमने देखा है कोई भी फॉर्मेट हो, अगर हर कुछ ओवर में अगर आपको विकेट मिलते रहते हैं, तो एक 10 और 12 ओवर के बाद थोड़ा
बैट्समैन के दिमाग में डाउट हो जाता है कि ऑल आउट मारने के लिए जाना है या नहीं जाना है, तो एक पार स्कोर की तरफ फिर टीम बढ़ती है। एंड आई थिंक उन्होंने भी यही सोचा हुआ कि 135 140 अगर बन जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, पर हमारे बॉलर्स ने अच्छा डाला जिसके कारण वो 130 रन बना। भाई विराट को जितनी चर्चा की है कम सुपर फॉर्म में है, लेकिन लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा डिपेंडेंसी है, क्योंकि गौर करें तो पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए, चौकी मार गए, और अब ऊपर आप बॉलिंग में भी उनको लगा रहे हैं, फील्डिंग में भी लगाते हैं लॉन्ग फील्डिंग तो करनी है। नहीं, अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में जो अच्छी चीज़ हमारे लिए रही है, अगर आप वार्म अप गेम से अभी तक देखें तो जो भी टॉप 7 बैट्समैन हैं सबने मैचेस खेले हैं, सबको बैटिंग का चांस मिला है, सबने थोड़े प्रेशर में बैटिंग की है, भले वो वार्म अप गेम हो या प्रॉपर वर्ल्ड कप का गेम हो। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सबको थोड़ा प्रॉपर गेम का जो एक्सपोजर है, जो इस फॉर्मेट का एक्सपोजर वो मिला है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर अस। और अक्सर देखा गया है कि अगर टीम 2 ही 3 विकेट खो के सारे रन बना लेती है तो अक्सर जो 2 ओपनर है और जो 3 नंबर का बैट्समैन है वही रन बनाएगा। बट एक चीज़ अच्छी रही है कि सबने बैटिंग की है, सो ऐसा नहीं है कि हम टूर्नामेंट के जो अगले स्टेज में अगर गए तो ऐसा रहेगा कि हमारे सारे बैट्समैन ने बैटिंग नहीं की है, लोअर ऑर्डर ने या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं की है। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर अस। लॉस्ट टू अगर 20 बॉल के डिफरेंस से आप लोग जीत जाते तो शायद नेट रन रेट में ऊपर आ जाते। Was that factor playing like was there a message for the batsmen? No, I think the last few overs, the way they batted, whatever was there, they tried to play the big strokes because we play so many games. All the batsmen, they are experienced enough. Virat has also played quite a few games. Yuvraj is a very experienced guy. So once they were in and they knew, even if you lose a few wickets right now, you'll still win the game. Then they went after the bowlers and scored the runs. So looking at the wicket, it would have been a bit difficult if you are supposed to get 50-60 odd runs and you want to get it in 5 or 6 overs, you lose a few wickets, and the pressure mounts on you. So I think it was the right decision. I think they batted really well. Lost one. MS इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी जीत मिली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी हार मिली, आज फिर बड़ी जीत है। T20 में मोमेंटम नाम की कोई चीज़ होती है? मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने बोला इस टूर्नामेंट में अगर आप कुछ टीमों को देखें तो ऐसा काफ़ी टीमों के साथ हुआ है कि एक कंफर्टेबल विन मिली है, उसके बाद एक थोड़ा ख़राब डिफीट उनको फेस करना पड़ा है। तो आई थिंक आपको डे बाय डे जाना पड़ता है किस तरीके का अगेन विकेट कैसा है। एक मैच अगर आप कोलंबो में खेल रहे हैं, दूसरा पल्लेकेले या हम्बनटोटा में खेल रहे हैं तो विकेट बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। कुछ विकेट आपको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, कुछ एकदम सूट नहीं करते हैं। सो यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड। ऑफ कोर्स सिस्टम से एक ख़राब डिफीट को निकालना इंपॉर्टेंट है, बट एकदम ही निकाल के अलग भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उस तरीके के मैचेस में। सो देखते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है, सो होपफुली नॉकआउट स्टेज में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट रहेगा। कप्तान साहब, आप बात करेंगे साउथ अफ्रीका के मैच के खिलाफ, प्लीज उस मैच के ऊपर आप सवाल कीजिएगा, सवाल सारे हिंदी में। बस ये आपका 4th विश्व कप होगा, वर्ल्ड कप होगा, ओके, एंड आप इंग्लिश में पूछ लो, आप हिंदी you में will जवाब be दे। probably the first captain in Indian history to lift the trophy for the second time. You are 3 matches away. So has that thought come across as of now? And नहीं, अगर आप देखें तो हर बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मुझसे पूछा जाता है तो मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ प्रेजेंट में रहने के, और वर्ल्ड कप जीतना काफ़ी दूर की बात है, क्योंकि अभी हमारी जो प्रायोरिटी है वो है कि हम नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करें, जिसके लिए हमें अगला मैच जीतना ज़रूरी है। तो समय से बहुत ज़्यादा आगे नहीं देखना चाहिए। अभी जो 2 दिन है उस 2 दिन में हम क्या करते हैं, और फिर जो नेक्स्ट गेम है उसमें हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो फिर लॉटरी क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी नॉकआउट स्टेज में। अगर किसी ने बहुत अच्छी बैटिंग की या बॉलिंग की, लॉटरी टिकट आपके पास है तो आप जीत गए। ठीक, नेक्स्ट मैच आप लो डाई में सिचुएशन होगी, और ना सिर्फ जीतना बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना, क्योंकि अभी जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है 3 टीमें अभी एक ही जगह पे बैठी हैं। हर टीम अगर चाहे जीते भी अच्छे मार्जिन के साथ जीते, क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? और सहवाग को लेके आपके ऊपर ये भी आ रहा है कि नहीं खिला रहे थे, क्या वजह थी, या नेक्स्ट उसको खिलाएंगे आज उसको?
यार, आपने पूरे किताब का क्वेश्चन पूछ लिया। मौका एक मिला है। अच्छा, तो बेसिकली जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो हम आराम से अभी बैठेंगे। हमसे पहले जो मैच है उसके ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगी, उस मैच में क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। तो अभी स्ट्रैटेजी बना के कोई फ़ायदा नहीं है। द रीज़न भी हो सकता है कि जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। सो विल वेट एंड वॉच। और जहाँ तक सिलेक्शन की बात है तो इट रिमेन्स इन द ड्रेसिंग रूम। एंड सहवाग स्पेशली अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए पाकिस्तान के अगेंस्ट तो काफ़ी माशाल्लाह रिकॉर्ड है उनका। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव हिम आउट, स्पेशली जब आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं। लॉस्ट टू इन सुपर 8 का आखिरी मैच हमारा रहेगा, सब पत्ते खुले रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एडवांटेज मैकेनिज्म आखिरी मैच सुपर 8 का है, हमारे लिए आखिरी मैच भी हो सकता है टूर्नामेंट का। सो देखेंगे क्या सिचुएशन है, क्या हमें क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स एक जो विन है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अगर ये इक्वेशन आ जाए कि इस मार्जिन से जीतना है, या अगर पहले रन बनाए हैं तो इस इतने में ऑपोजिशन को आउट करना है, तो इट विल बी ट्रिकी। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला विकेट पे भी डिपेंड करेगा कि विकेट कैसा उस पर्टिकुलर डे में खेल रही है। सो विल वेट एंड वॉच। अभी 2 दिन का टाइम है। लास्ट क्वेश्चन है साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड्स बन गए हैं सो डू यू थिंक कि हरभजन विल कम बैक और डू यू थिंक तो जैसा कि मैंने बोला हमें देखना होगा कि विकेट, क्योंकि हमारे पास थोड़ी लिबर्टी, अगर आप देखें कि 3:30 बजे से पहला मैच स्टार्ट होता है तो हम लोग टीवी पे देख सकते हैं बॉल घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, क्योंकि हर टीम में अच्छे स्पिनर्स हैं। तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट होता है प्लेइंग 11 के जो हम डिसाइड करते हैं उसके ऊपर। बट राइट नाउ बोलना कोई खेलेगा या नहीं खेलेगा ये बहुत मुश्किल है। लास्ट फोर इन इंग्लिश You're talking about the part-time bowling options. As a captain, when do you decide that somebody, okay, let me take somebody off, he's bowled 2 good overs, how tempting is it to go for the 3rd over, or how do you decide, okay, let me stop him? Yeah. It's a difficult one. Frankly, I'll tell you, the reason being, at times I've seen, I've been captain for the last 3 or 4 years. You try to go for that 1 extra over, and that over goes for 20 or 25 runs, and the whole analysis goes bad. So, at times if you're comfortable with what's on the board, and rather than gambling too much and saying if I give that part-timer 1 more over, even if it's a bad over, if the score moves up by 20 or 25 runs, then it becomes a bit difficult on the slow wicket. So what we decide is, are we comfortable with whatever the opposition have put, and if our proper bowlers bowl, this is the amount of run that they may score, and if we're comfortable with that score at the end of the day, we'll look to chase that. If the part-timers, they have done their job, no point really pushing them, because errors can happen at any time. So I should be happy once they have bowled 4 good overs. लास्ट वन Are you surprised when South Africa is not doing well? In the first 2 matches, are you really surprised? They are a very good side. If you see their bowling line, it looks like a very complete bowling lineup. With fast bowlers, Jack Callis, 2 spinners, and at the same time, they have got batsmen who can really score runs at a good pace. Right from AB to Jack Callis to Amla, everyone, JP Dumini. So they are a very good side. But in this format, you have to click as a team. Or if you have somebody like a Chris Gayle in your side, then he needs to click on his own and he can win you games. But otherwise, you have to click as a team. Somebody scores 40 or 50 odd runs, and the rest they play cameos of 15 runs, 10 runs, 12 runs in 4 deliveries or 5 deliveries. That really helps the team to win, and those odd run outs or runs save really matter. So they are a very good side. I think they have got the balance, they've got the talent. Thank you very much. Thank you. Tomorrow morning, training from 10 o'clock at Falls. Thank you. Yeah. The 2 pre-match press conferences are at 1300.